Good morning, student, particularly to BSc second year classes. In the BSc second year classes, we are already know that we are about to the continuous to the parts of the physiology into the particular to the excretion processes which are going on. In the excretion process, there are the excretory systems in which to the kidney, their structure and function, so that we will discuss today about to the unit of the kidney, which means that the kidney is made up of the unit which called to the nephron. Nephron is the structural and functional unit of the kidney. So that today's topic I will start right now to the structure and function of the nephrons, particularly to the structure of nephron. Nephron is the unit of the kidney. As you can say that about to the nephron is the structural and functional unit of the kidney, which means that to the which are constituted together and that is formed to the particular type of the kidneys, and which also perform to the functioning, the mechanism for the purification of the blood and to the reabsorption, and after that to the tubular secretion into the formation of the urine, so that to the different kinds of the functioning and the works which are done by to the nephrons, and the nephrons is the unit of the kidney, so that the kidney is working as a lot of the functioning which participate into the maintain to the physiology of the body, which proceeds to the animals alive and so now go so that I am going to the today's lecture structure of nephrons. As earlier to mention that about to the nephrons is the structural and functional unit of the kidney. You are best known that to there are the two kidneys present into the human beings or the man, so that each kidney have to the millions of the nephrons of the each kidney, so that to the just considered about to the how many numbers of the kidney, how many numbers of the nephrons particularly which are constituted together in the kidney, that's to make to the structure of the kidney, which participate into the purification and the formation of the urine, and in the other words we can say that to the physiology of the urine formation. So that this is the structural and functional. Nephron is the structural and functional. First is the make to the particular kidney structure of the kidney, and then we are performing to the lot of the functioning which are required by the genes, which are required by the nature. So the kidney which are working. तो आज के चैप्टर में हम बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड क्लासेस जो फिजियोलॉजी चल रही है उसके अंतर्गत किडनी को देख रहे थे पिछले लेक्चर में, और आज हम देखेंगे कि किडनी को बनाने वाली जो इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन्स के विषय में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स के विषय में जानेंगे, उसके यूनिट के विषय में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। Let us see here to the each kidney contains the millions of the nephrons which are known as the structural and the functional unit of the kidney, as we mentioned into the recently, that is the each kidney which contain to the millions of the nephrons, and that nephrons is called to the structural and functional unit of the kidney. तो किडनी की यूनिट कही जाती है, स्ट्रक्चर को भी बनाएगी, फंक्शन भी करेगी, पूरे किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पिरामिड्स के अंदर पूरे के पूरे
नेफ्रॉन्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और नेफ्रॉन्स जो होती है वो लीड्स करती है माइनर और मेजर कैलिसेस से पहले से होते हैं यूरेटर में, इस प्रकार से। और एक तरफ से आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से वो जो है ब्लड को रिसीव करती है, वहाँ पे प्योरीफाई करके और ब्लड को प्योर कर देती है, ब्लड को अलग कर देती है, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म परफॉर्म करती है और उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से होते हुए सेक्रीशन प्रोसेस करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करके उससे बॉडी पार्ट से बाहर निकाल देती है। तो ये फंक्शनिंग मेजर फंक्शनिंग है इसकी, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर को भी बनाती है और फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। द नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ, तो आइए देखते हैं कि आज जो है नेफ्रॉन्स जो कि यूनिट है किडनी का और उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने फीचर्स होते हैं, उसको देखते हैं। तो बेसिकली द नेफ्रॉन्स विच आर कंसिस्ट ऑफ द 5 पार्ट्स विच आर referred as to the renal or the Malpighian capsules or the Malpighian bodies as well. Second is the proximal convoluted tubule is shortly is called to the PCT. Third is the loops of the renal is the U-shaped structure which are found into the after to the PCT and then joined to the DCT into the in the forward. And fourth is the distal convoluted tubule and another type of the convolution which are present in the tubule, that is called to the DCT. And finally we are going now to the collecting tubules and the collecting duct which are communicating to the lot of the nephrons into the other regions, and that region is called the duct of Bellini. The duct of Bellini which are the parts of the nephrons where the communication to the lot of the nephrons, and that is called to the duct of Bellini, and that leads to the urine in the outer side. तो यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है। तो हमने आज का जो लेक्चर स्टार्ट किया उसके अंतर्गत हमने नेफ्रॉन्स को जानने का प्रयास किया है। तो आपने अमूमन जाना कि 5 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट होते हैं उसके, बेसिकली रूप से हम कह सकते हैं। हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे वन बाय वन। तो आइए देखते हैं कि एक नेफ्रॉन्स का, पहले हम स्ट्रक्चर को जानते हैं फिर फिजियोलॉजी को जानेंगे। पहले 5 पार्ट्स को देखते हैं। 5 पार्ट्स क्या है? First of all, you are just look at here to the how many parts of the kidney nephrons and where are the constitution. Then we are go carry to their functioning. So first of all, this is the मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। I make to the diagram of the nephrons for the try to understand about to the situation, location, and as you can say that is the scenario where are the reabsorption, ultrafiltration, and to the tubular secretion process that takes place. तो यहाँ पर आप देखिए एक नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत सारे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी किए हैं और मेंशनिंग किया है बहुत सारे चीज़ों का। तो हम सबसे पहले शुरुआत चलते हैं। तो मैंने एक्चुअल में बताया ये नेफ्रॉन्स है, ये नेफ्रॉन्स इस तरीके से दिखता है। ये देखिए ये नेफ्रॉन्स का ये भाग है, ये इस तरीके से जो दिख रहा है। तो इस भाग को बोला जाता है, कलेक्टिवली टर्म दिया जाता है मालपिगियन कैप्सूल बोलिए, मालपिगियन बॉडीज बोलिए, मालपिगियन कैप्सूल्स बोलिए या रिनल कैप्सूल बोलिए। तो ये रिनल कैप्सूल के भी नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी मेंशन किया था, वी आर प्रीवियसली मेंशन दैट टू द किडनी विच आर आल्सो कॉल्ड टू द रिनल पार्ट्स, so that to the each of the parts is communicating, that is called to the renal, so that to the renal capsules, renal bodies, Malpighian bodies। तो Malpighian bodies होती है ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। पहला पार्ट जो है कह सकते हैं हम कि जो पहला पार्ट नेफ्रॉन्स का है वो Malpighian capsules होती हैं, और या इसको दूसरे नाम में renal capsules भी बोला जाता है या फिर Malpighian bodies भी इसको बोला जाता है। तो डिफरेंट नेम्स हैं इसके, अलग अलग नेम्स है और उस नेम के आधार पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये Malpighian body which are consist of the 2 parts, basically 2 parts, 2 parts को कंटेन करता है। 2 parts in glomerulus and Bowman's capsule. The glomerulus is the very important part of the Malpighian bodies because they help to the selective reabsorption
ultrafiltration mechanism which are takes place through the glomerulus parts, and these are the glomerulus which are surrounded by to the double layered parietal and visceral layers of the Bowman's capsule, so that to the glomerula, the glomeruli, यहाँ पे देखें कि ये पूरे का पूरा जो रीजन है वो मालपीजियन कैप्सूल कहलाता है या फिर रेनल कैप्सूल कहलाता है। उसमें दो भाग होते हैं, ये ग्लोमेरुलाई है, ग्लोमेरुलस पार्ट है, और उसको वो सराउंड किया है, लाइन किया है, ये डबल लेयर्ड होती है, जिसमें विसरल एंड पैराइटल बाहर की तरफ होती है, विसरल ग्लोमेरुलस की तरफ होती है। तो ये जो ग्लोमेरुलाई है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ही अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है, या फिर आप कह सकते हैं फिल्ट्रेट की प्रक्रिया होगी, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, जहाँ पे ब्लड जो है अलग हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा, और जितने भी उसके साथ में मटेरियल्स होते हैं, सबस्टांस होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, एंजाइम्स होता है, हार्मोन, जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ से आइसोलेट कर दी जाती हैं फिल्ट्रेशन के माध्यम से। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट try to understand about to the what is the main work and their structure। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ्ट होता है। टफ्ट कैसा होता है? एट्रियोल्स होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एफरेंट एट्रियोल, और इधर इस साइड में लिखा है इफरेंट एट्रियोल। एट्रियोल जो कि आपको पता है पहले से मैंने बताया है कि आर्टरी जो होती है वो स्मॉल आर्टरी और फिर एट्रियोल में कन्वर्ट होती है। तो आपको समझ सकते हैं कि मैं जो किडनी का जो महत्वपूर्ण पहला जो फंक्शन, चीफ फंक्शन माना जाता है कि ये देखें, मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये क्या है? हमारा अफरेंट एट्रियोल है, और अफरेंट एट्रियोल में कम्युनिकेशन होगा। देखें ऐसा हम बना दे रहे हैं, ये यहाँ से कम्युनिकेट करेगी, ये ब्लड को लेके आ रही है, यहाँ पे प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो कौन ब्लड लेके आता है? डिसेंडिंग अबार्टाज। तो डिसेंडिंग अबार्टा है, अबार्टा आर्टरीज में कन्वर्ट होती है, आर्टरीज एट्रियोल में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से वो फर्दर एंड फर्दर उसका जो है उसमें डिफरेंशिएशन होता चला जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये किडनी का पार्ट है, किडनी की यूनिट है, और इसकी यूनिट में इसको रिसीव करना है ब्लड को। तो ये अफरेंट जो रिसीव ब्लड को पहले रिसीव करती है रेनल आर्टरी के माध्यम से, वो अफरेंट एट्रियोल कहलाती है। और आफ्टर द प्यूरिफिकेशन जो ये ब्लड को कंटेन करके बाहर की तरफ फिर से हार्ट में पहुंचाती है, हार्ट से वेन्स के माध्यम से, वो इफरेंट एट्रियोल कहलाती है। अब ये आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इफरेंट एट्रियोल उसमें वेन्स में कन्वर्ट होता है। तो पहले समझते हैं। तो देखिए हमने एक पैसेज के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो है आप समझिए डिसेंडिंग अबार्टाज है, जो कि हार्ट से निकलता है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जितनी भी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वहाँ पे उसका कम्युनिकेशन होता है, और उस कम्युनिकेशन के आधार पर जो ब्लड होता है ये यहाँ से अफरेंट एट्रियोल जो कि आर्टरी ही है, वो फर्दर जो है डिफरेंशिएट हो गई, माइन्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से ब्लड ये आपके इस ग्लोमेरुलस पार्ट में आता है, ग्लोमेरुलाई में आता है, और ग्लोमेरुलाई में आके यहाँ फिल्ट्रेट होगा। तो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के लिए डिफ्यूजन यहाँ पे होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस होगा, मतलब कि नंबर्स ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेसेस विच आर टेक्स प्लेस फॉर दैट टू द प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड और द अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, एंड दैट विच मीन्स दैट टू द numbers of the substances which are filtrated in this region due to the presence of the osmotic pressure, diffusion pressure. तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ से ब्लड आता है, देखिए हम यहाँ पे ये इंडिकेट कर दे रहे हैं, और इसको इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं एरो के माध्यम से, क्योंकि मैंने बताया कि ये अब देखिए ये अफरेंट जो एट्रियोल होता है वो उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इतना फाइन ये एट्रियोल में इतना फाइन टफ्ट गुच्छा बना ले। टफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर टफ्ट, एट्रियोल्स का टफ्ट बनता है, और एट्रियोल टफ्ट का मतलब वो फर्दर कम्युनिकेट करके एक जो है नेटवर्क बना लेती हैं, जो गुच्छा बना लेती हैं नियर अबाउट टू द 50 एट्रियोल्स विच आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग टू द टफ्ट वेयर आर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म इज द टेक्स प्लेस। तो ये ग्लोमेरुलाइज का पार्ट है,
ये ग्लोमेरुलस वो जहाँ बोला गया है, जिसको वुमेन्स कैप्सूल सराउंड किए है, और इसके बाद जो है यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के लिए ये टफ बन के ये बाद में फिर से ओपन होगा, लीड्स करेगा इफरेंट एट्रियोल में, और इफरेंट एट्रियोल बाद में चल के ये यहाँ से फर्दर कम्युनिकेशन करता हुआ पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आगे बढ़ेगा, और आगे चल के ये कैपिलरीज, फिर वेन्यूल, फिर वेन्स, और फिर रिनल वेन के माध्यम से बाहर निकल के आपकी इंफीरियर वेना के बाद से आपकी हमारे हार्ट पे फिर से पहुंचती हैं, और वहां से पहुंच के ऑक्सीजनेशन होके फिर से वही चैनल सो ऑन करती हैं, मतलब फिर से वही रिप्रेजेंटेशन होगा और बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। तो किडनी में इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आप देखें, ये तो पहला पार्ट था ये। अब दूसरा पार्ट क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इस फेमस है पीसीटी के नाम है, कॉन्वोल्यूशन। The tubular structure which are found, but these are the tubular structure which are have to the convolution. That is the this type of the shape. This is the convolution. So that to the proximal, this is the proximal part. So that on the behalf of this region, there is the name as proximal convoluted and tubule. तो इससे एसोसिएट करता है, यहाँ से प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये यहाँ से देखिए, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये इस तरीके से यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेनल्स लूप। हेनल इस खोज की इसलिए इसे हेनल लूप बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाने में ये असेंड करता है, डिसेंड करता है, फिर असेंड करता है। तो डिसेंड करता है, उसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनल्स लूप बोलते हैं, और जो असेंड करके फिर से ज्वाइन करेगा आगे डीसीटी को, उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ द हेनल्स लूप। आगे चल के ये फिर से कॉन्वोल्यूशन बनाएगा। दिस टाइप ऑफ द कॉन्वोल्यूशन इज आल्सो प्रेजेंट इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ द tubule, so that is called to the distal convoluted tubule. This is a type of the convolution, this is type of the striation, this is type of the मतलब एक विशेष प्रकार का वहाँ पे फीचर्स होगा जो कि विशेष प्रकार की टिश्यू से जो है लाइन किया रहता है। तो ये इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये फिर फर्दर कम्युनिकेशन कर रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना रहा है, फिर से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाद में फर्दर जो है जो नेफ्रॉन्स होती हैं उसके एंड पार्ट से कम्युनिकेट करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं एक विशेष पार्ट पे जाके कम्युनिकेट करेंगे, जुड़ जाएंगे, अपने आप में एसोसिएशन करेंगे, तो उस पार्ट को बोलते हैं डक्ट्स ऑफ बेलानी। तो ये देखिए, हमने कुछ अपने रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, और इस कलेक्टिंग डक्ट तो ढेर सारे पाए जाते हैं। जितने भी नेफ्रॉन्स होंगे एक किडनी में, वो सारे के सारे एक जगह पे कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो इस पार्ट्स को क्या बताया जाता है? डक्ट्स ऑफ बेलानी या फिर कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जहाँ पे पूरे के पूरे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं, और बाद में वो आगे चल के माइनर और मेजर कैलिक्सिस के माध्यम से पेल्विस से खुलते हैं, यूरेटर के माध्यम से जो यूरिन बनाते हैं उसे पास आउट कर देते हैं। तो ये पहला तो आपने अभी जाना कि जो नेफ्रॉन्स होता है और नेफ्रॉन्स में कितने पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पार्ट्स में जो पार्ट्स थे कितने पार्ट्स थे, और वहाँ पे उसका क्या नाम है, और उसका जो है क्या फंक्शन होता है। अब हम इसी नेफ्रॉन्स को अब इसकी फिजियोलॉजी के माध्यम से समझते हैं, फिजियोलॉजिकल टर्म्स के हिसाब से समझते हैं, फंक्शन के बेस पे समझते हैं क्या है एक नेफ्रॉन्स क्या काम करता है। एक जो किडनी होती है, जैसे आप कहते हैं किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, सेंसिटिव होती है, और क्योंकि नेफ्रॉन्स के यहाँ पे बनी है, नेफ्रॉन्स उसकी यूनिट है, तो जो भी वर्क करेगी वो नेफ्रॉन्स करेगी। और नेफ्रॉन्स क्या काम करता है, मैंने कहा प्यूरिफिकेशन करेगा, ब्लड को क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जाएगा, और सेक्रीशन भी प्रोसेस करता है। फिर इसमें तो अब आपको पता है कि सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज द मेन एंड चीफ फंक्शन ऑफ टू द किडनी, सो दैट टू द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जैसे देखिए, अब तीन पार्ट्स को आपने समझ लिया है,
5 रीजन्स को विशेष समझा है नेफ्रॉन्स के, और उसी 5 रीजन्स के माध्यम से हम आपको यहाँ पर इसकी पूरी फिजियोलॉजी, या यूँ कहें कि फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। यूरिन कैसे बनता है उसको रिप्रेजेंट किया है, उसके माध्यम से हम आपको देखते हैं। तो ये जो फंक्शनिंग है तो फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन को देखेंगे, और फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया में जा रहा है, प्रक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि यहाँ पर भी क्या होना है, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होगा और रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होगा और सिक्रीशन होगा। तो आप जेन्युइनली यूजुअली आपको पता है कि जब भी किसी भी सेल से, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होगा, सिक्रीशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, वो तभी होगा जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी तो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर मेड अप ऑफ द cell have to the plasma membrane, and the work of the plasma membrane is always to selective in nature, because these are have to the permeability, and the permeability is done by to the diffusion process। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से परमेबल होके वो जो है विभिन्न प्रकार के जो भी सबस्टांसेस होते हैं वो सेल में इन सेल और आउट सेल प्रोसीजर को करती है। तो यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी हम आपको बता दें कि ये फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन जो इस नेफ्रॉन्स के माध्यम से होता है, विभिन्न प्रकार के जो सबस्टांसेस, कंपाउंड और मिनरल्स होते हैं वो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जाएंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जाएंगे। तो वो कैसे जाएंगे और पूरा का पूरा जो ब्लड होगा वो इस ग्लोमेरुलाई में कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो डिफ्यूजन आपको पता है, पहले भी मैंने बताया कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू द एनी आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स और द सॉल्वेंट और द solvent which are goes from to the region of the lower concentration to the region of the region up to the higher concentration to the region of the lower concentration। मतलब उस रीजन से जहाँ पे उसकी सांद्रता, उसकी मात्रा अधिक है वो हमेशा उस रीजन में जाएगा जहाँ पे उसकी मात्रा कम होगी। तो उस बिहाफ पे, उस फिजियोलॉजी पे, उस मैकेनिज्म पे वो काम करता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमेशा जो भी आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो या सॉल्वेंट हो, जिस भी प्रकार से होगा वो वहाँ पे ग्रेटर से हमेशा लोअर की कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होती है। मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में ये भी बताया कि आपको कि देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशंस 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लड भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, ये भी, इसमें भी वाटर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। तो चूंकि ब्लड क्या हो रहा है, अफरेंट एट्रियोल से कहाँ पे आएगा, इफरेंट में आएगा, इफरेंट से प्रीप्रॉक्सिमल में जाएगा, हेनल लूप से माध्यम से डिस्टल में जाएगा और डिस्टल से होता हुआ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के माध्यम से बाहर निकलेगा या फिर अदर पार्ट ऑफ द सेल में जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, फ्रैक्सिलेटेड डिफ्यूजन, so many kinds of the diffusion processes takes place for that to the ultrafiltration, reabsorption and tubulus secretion processes, and in which to the numbers of the substances which are filtrating on the behalf of to the there are the solutions. So solutions, there are the solutions is the 3 types. There are the 3 types of the solutions which are found. First is the isotonic, hypertonic and hypotonic. Isotonic, iso is the same, the tones is the solution. There are, which means that to the those type of the solution where are the osmotic pressure of the extracellular or intracellular or the inside or the outside of the fluid material is the their osmotic pressure will be equal, or the
in the any kinds of the solution where the equalization or the equilibrium level equilibrium level which are found when the water molecule which are goes to the those regions where the concentration is less. कहने का मतलब होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब वो इक्वल दोनों जो सोल्यूशन है तब तक इक्वल नहीं होगा जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाते, एक दूसरे पे बराबर नहीं जाते। तो मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन वो है जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जीरो रहता है और वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, और वो मूवमेंट तब तक हो चुका होता है जब तक कि दोनों के दोनों जो सोल्यूशन होते हैं, जो सेल के अंदर और सेल के बाहर होते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगता। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा। हाइपरटोनिक्स, तो यहाँ पे जो सेल होता है, हम एग्जांपल के तौर पे वी आर टेक टू द एग्जांपल एंड देन द सेल विच आर प्लेसिंग इनटू द एनी काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन टू द other two types of the solution which are found. First solution is which are carried by to the cell and to the another which are placing inside. जहाँ पर उसको प्लेस किया जा रहा है एक सोल्यूशन वो है और उसका एक खुद का सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट सी द where are the particles, where are the molecules of the water, where are the going on, कहाँ पर वो जाएंगे। तो वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कम है। लेकिन ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उसको प्लेस आज किया जा रहा है। यहाँ पे अब हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक हम छोटा सा यहाँ पे ये सेल ले रहे हैं और सेल के अंदर सेल किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल, यहाँ पे ये फ्लूइड है और ये सेल है। तो ये यहाँ पर आइसोटोनिक मैंने बताया कि जब दोनों के दोनों जो फ्लूइड होते हैं यहाँ पे ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जबकि यहाँ पे कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब तक कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये दोनों तरफ जो है बराबर हो चुके होते हैं, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता किसी भी वाटर का या फिर सॉल्यूट का। तो ये इसको जो है आइसोटोनिक बोला जाता है। पहला क्या हो गया, आइसोटोनिक। ठीक है, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। दूसरा हमने का अभी शुरुआत किया कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक का मतलब है कि ये जो होगा ये हाइपरटोनिक होगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये क्या है, हाइपोटोनिक होगा। तो अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ये सोल्यूशन ये है। तो आप जान लीजिए कि जहाँ पे कंसंट्रेशन, hypertonic solution, those are the solution which are have to the concentration। अब यहाँ पे ये क्या है, सोल्यूशन है, और जहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है तो वहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो कम होता है। तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, इसका मतलब क्योंकि क्या एरिया ये ज़्यादा है, इसका कम है, और यहाँ पे वाटर, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसकी अपेक्षा कम है, कम कंसंट्रेटेड, लेसर कंसंट्रेटेड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये चूंकि सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। तो यहाँ से सेल से ये है, तो जब सेल निकलने लगेगा तो क्या होगा। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसका रिवर्स होता है। तो आपने देखा, ये मैंने यहाँ पे अब बताना नहीं था, यहाँ पे बस ये समझाना था कि ये 3 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं और ये 3 प्रकार के सोल्यूशन जो है उसी डिफ्यूजन प्रोसेस पे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपका नेफ्रॉन्स है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड भी एक सोल्यूशन है, विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस को कैरी किया है और उस कैरी करके यहाँ पे इस अफरेंट एट्रियोल के माध्यम से ही इस ग्लोमेरुलाई में आएगा। तो आप ये जान लीजिए, अफरेंट एट्रियोल में जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलाई से क्या होता है, कम होता है। मतलब यूँ कहें कि अफरेंट एट्रियोल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द afferent atriole is less than to the glomeruli, because the glomeruli is the finest tufts of the atrioles। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो कम होगा तो इसलिए ये जो है यहाँ से ब्लड यहाँ पे अंदर
प्रवेश कर जाएगी, और प्रवेश करेगी तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल, कुछ हमने नाम लिया है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर, जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के साथ में है, वो यहाँ पे फिल्ट्रेट मैकेनिज्म में जाएंगे और यहीं पे इस ग्लोमेरुलाई के माध्यम से, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से मैंने कहा कि अफरेंट एट्रियोल which are have to the lesser osmotic pressure than to the glomeruli, and that then to the blood vessel goes to the glomeruli, and where the filtration mechanism it takes place, ultrafiltration mechanism is takes place for that to the reabsorption process, so that to the here to the tufts which are have to the greater osmotic pressure than to the glomeruli, so that to the, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा ये ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से यहाँ पे चलाएगा, और ये चूंकि मैंने कहा बोमन्स कैप्सूल इसको कवर करता है, तो ये अब इसके माध्यम से जो ब्लड होगा वो प्योरीफाई होके ये यहाँ से अफरेंट एट्रियोल के माध्यम से ये यहाँ से जुड़ता हुआ वासादिकता बनाते हुए ये आके वेन्स, वेन्यूल और वेन्स में जुड़ जाता है और फिर से हार्ट में पहुंच जाता है, बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। तो ये अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म मैंने जनरली आपको बताया कि वो जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस पे होता है, और जितने भी प्रकार की यहाँ पे जो है ये नॉर्मली जो है यहाँ पे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेट हो जाते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो है ये जितने भी मटेरियल होते हैं ये क्या होंगे, यहाँ से फिल्ट्रेट होके यहीं पे इकट्ठे रहते हैं, और ये जबकि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे आते हैं। तो इस रीजन में जब आएंगे तो हम आपको बता दें अबाउट टू द 60% ऑफ द टोटल रीअब्जॉर्प्शन इज द टेक्स प्लेस इनटू द पीसीटी रीजन। पीसीटी रीजन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के रीजन में 60% जो है जितना भी टोटल हमारा रीअब्जॉर्प्शन होना है वो उसका 60% पीसीटी में हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पे एरो के माध्यम से ये दिखाया है कि कौन कौन सी चीजें किस रीजन में किस पार्ट में वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हैं। What are the substances which are reabsorbed by the wall of PCT and DCT and Henel's loops, and how much amount are the amount up to the these substances into the about to the 60% of the total filtrate which are reabsorbed in this region, which named as proximal convoluted tubule. Other type of the convolution, this is the जो यहाँ पे ये दिखाया गया ये वाल होती है, और इस वाल्स में जो मैंने एरो लगाया है ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, पोटेशियम है, कार्बोनेट है, सोडियम है, क्लोराइड है, फास्फेट है, वाटर है। तो ये विभिन्न प्रकार के जितने भी सबस्टांसेस, जितने भी कंपाउंड, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इवन यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, सबकी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जाके रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्योंकि क्या है यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि जो किडनी होता है वो आयंस का मेंटेनेंस करता है, बॉडी ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आयंस होते हैं, और बॉडी में जो भी वाटर और जो सबस्टेंसेस होते हैं, तो वाटर को रिटेन करता है, वाटर के अमाउंट को मेंटेन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे करेगा वो आगे हम बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ पे बेसिकली रूप से विभिन्न प्रकार की जो वो जो है पैसिव, एक्टिव और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को यहाँ पे दिखाता है, और उसके माध्यम से इन सारे मटेरियल्स को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। कितने परसेंट? 60%। आफ्टर दैट इज गोइंग इनटू द ऑल द मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पे सारे मटेरियल जो भी बचे हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, दैट इज प्रोसीड इनटू द यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? मैंने बताया है कि हेनल्स लूप है, और हेनल्स लूप में क्योंकि क्या होता है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो उसके सेल का हुआ है वो अलग अलग हुआ है, एक तरफ थिन है, एक तरफ थिक है। तो इस थिन और थिक के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, क्योंकि ये डिसेंड किया है फिर असेंड किया है, तो इसलिए इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनल्स लूप बोला जा रहा है। और ये जो है परमिएबल होता है ओनली फॉर दैट टू द H2O।
यहाँ पे केवल और केवल H2O, मतलब जितने भी सब्सटेंस 40% आगे बढ़ेंगे उसमें से केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब करेगी। आपके बॉडी में वाटर का जो रिटेंशन है, वाटर रिटेन है, वो लगातार इसी देखिए रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से मेंटेन होता रहता है, क्योंकि क्या है ब्लड में 60% जितने भी वाटर होते हैं, मैंने कहा कि प्यूरिफिकेशन होना है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें जो है आपके लीवर और फिर जो है यहाँ से किडनी में आती हैं और फिर जो है रीअब्जॉर्ब की जाती हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल ये परमेबल होता है H2O का। और वाटर का परमेबिलिटी आप जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटेलिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है वाटर के लिए, इसलिए ये जो वाल होती है हेनस लूप की, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर देती है। आगे हम बढ़ते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनस लूप। देखिए यहाँ पे ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है, थिकेस्ट होती है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब जो कुछ आयंस होते हैं उनके लिए परमेबल हो जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग देखिए आप ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे देख रहे हैं कि उसका अलग अलग सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोसीड कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए फिर से कन्वोल्यूशन है, और ये कन्वोल्यूशन कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्योंकि क्या है, इसका ये डिस्टल पार्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है। हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, किडनी में जो प्रॉक्सिमल पार्ट और जो डिस्टल पार्ट है, देखिए ये तो ये ऐसे रहता है, और इसलिए ये कॉर्टेक्स जो किडनी में, मैंने कल पिछले चैप्टर में बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये पूरे रीजन जो है ये कॉर्टेक्स में आते हैं, और ये हेनस लूप और ये मेडुला रीजन में आते हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन में फिलहाल अब देखें फिर से यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टू द along with the sodium chloride, potassium, hydrogen and etc. along with the H2O as well. बट यहाँ पे एक चीज है, ये सोडियम का, क्लोराइड का, पोटेशियम का या फिर वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके आधार पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम दो हार्मोन्स का चर्चा करेंगे, एल्डोस्टेरोन और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ये दो चीजों पे वर्क करता है। ये एल्डोस्टेरोन जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है उस पे वर्क होता है, और वैसोप्रेसिन जो आपका वाटर होता है उस पे वर्क करता है। कैसे करता है ये आप देखें। एल्डोस्टेरोन इस रीजन जो डीसीटी का रीजन है, इस पे aldosterone is the one of the hormones which are secreted by to the adrenal cortex. That's part of the adrenal gland which found into the uppermost part of the kidney. This is the concept structure. There are the group of the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की सेल होती है, उसी से एल्डोस्टेरोन निकलता है। और एल्डोस्टेरोन का काम होता है जो सोडियम जो आयंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन करना, उनका मेंटेनेंस करना कि वो बॉडी में हमेशा लगातार बना रहे। तो देखिए यहाँ पे आप ये फंक्शन के रूप में ये भी देख सकते हैं कि जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी पार्ट है, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है एज अ हार्मोन, यहाँ पे जो सोडियम और क्लोराइड जो यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जा रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस के आधार पे होता है। जबकि ये बाहर निकलेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, तब जाके ये जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस करेगा। फिर आप देखते हैं यहाँ पे एक हार्मोन्स और भी हमने बताया, ADH या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और द वैसोप्रेसिन। Anti-diuretic hormone ADH, or also called to the vasopressin, is one of the hormone of the neurohypophysis of the pituitary gland that is made into the hypothalamus through the paraventricular and to the supraoptic neurons, and these are the neurons, nuclei of the neurons which are formed to the vasopressin and oxytocin and restored into the neurohypophysis region, and that is the requirement of the body of this type of the hormone which are released at that time, goes now into the particular regions of the body and take part into the function. So that is the vasopressin is one of the hormone, anti-diuretic hormone. This is a maintains to the water amount
water amount is maintained or retained in the body through this hormone is secreted the region of to the neurohypophysis. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन से जो कि सुप्रा ऑप्टिक अनऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है, जो हाइपोथैलेमस में होती है, वो वहाँ पे बनती है और यहाँ पे स्टोर होती है जब जरूरत होती है बॉडी की, जहाँ पे हार्मोन्स की, जैसे इस समय ये वैसोप्रेसिन जब निकलता है क्या करेगा, H2O का रिटेशन करेगा, रिटेन करेगी, वाटर का जो अमाउंट है वो लगातार बॉडी में बना रहे, मेंटेनेंस। एक्सेस अमाउंट में बॉडी अगर वाटर अगर बॉडी से निकलने लगा तो एक प्रकार का डिजीज हो जाएगा, मतलब फेलियर ऑफ दिस हार्मोन्स, that's indicating to the another type of the diabetes. Another type of the diabetes is called to the diabetes insipidus और diabetes mellitus। आपको पता होना चाहिए या हम आपको बता देते हैं, do you know that very well? There are the two kinds of the diabetes found into the human beings. First is to the diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus is represented in the body, or the diabetes mellitus symptoms is appeared in the man when the time due to the secretion of the insulin, of the beta cells of the Langerhans is reduced or the checked, so that these hormones is influenced to the liver cell, and that's the liver cell is convert to the glucose into the glycogen, and then after into the fasting region, or the when the time of the which are not take to the food material, that is the once again to the stimulated to the another hormone glycogen into the glucose through the another hormone glucagon into the glycogen and maintain to the blood glucose level. But when the time of the beta cells of the isolates of the Langerhans which are secreted to the insulin hormone, insulin to maintain blood glucose level, that means to the excess amount of the glucose which are coming along with the food material, that is stimulated to the liver cell, and the liver which stored to the excess glucose in the form of the glycogen due to the enhances of to the insulin hormone of the liver cell. तो liver cell का जो फंक्शन है वो इस इंसुलिन हार्मोन के माध्यम से होता है। तो आप सोचिए जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा या नहीं होगा तो आप में तो ग्लूकोज जब एक्सेसिव होने लगेगा बॉडी में तो किडनी जो है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन चूंकि किडनी जो ग्लूकोज होता है वो बहुत टफ होता है रीअब्जॉर्प्शन में किडनी से, तो किडनी उसको पास आउट करने लगेगी यूरिन के माध्यम से, और वो आगे चल के किडनी फेलियर का कारण बन सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए इन डायबिटीज मेलेटस का मतलब स्वीट होता है, जब तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से जुड़ा होता है। तो एक प्रकार का ये आपका डायबिटीज मेलेटस हो गया। और डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर, व्हेन द excess amount of the water which are passed along with the urine due to the lack of the work of the ADH hormones, these hormones which are not working in the well or the inappropriate manner, or this is the another physiological functioning which are disturbed। तो ADH के प्रभाव, ADH का जब सिक्रीशन या फिर इसका प्रभाव इस DCT पे नहीं पड़ता है तो उस समय एक प्रकार का तो क्या होगा, तो जितना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना होता है वो नहीं होगा, और वाटर इस यूरिन के साथ में एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा निकलने लगेगा, तो एक प्रकार का फिर से डायबिटीज़ हमें हो जाएगा, और उस डायबिटीज़ का नाम होता है
डायबिटीज इंसिपिडस। तो एक वाटर से होने वाला ज़्यादा निकलने से होता है, एक ग्लूकोज के ज़्यादा निकलने से होता है। तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए। मैंने हमेशा बार बार बताया है कि जितनी भी फिजियोलॉजी है वो कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग पे काम करती है। एक न्यूरल और हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन होता है वही पूरी बॉडी को चलाता है और इसी के आधार पे पूरी बॉडी फंक्शनिंग करती है, केमिकल रिएक्शन करती है और केमिकल रिएक्शन के बिहाव पे ही बॉडी जो है प्रोडक्शन या फिर यूँ कहें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में प्रोसीड करती है और इसी के माध्यम से एनर्जी और न्यू सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि हमारी जो कि पूरी सर्वाइवल जो प्रोसेस है इन सब फिजियोलॉजी के माध्यम से चलती रहती है। तो उसी इन फिजियोलॉजियों में ये किडनी भी है जहाँ पे अलग अलग हार्मोन्स का वर्क है उसके नेफ्रॉन्स में, जहाँ पे आपके बॉडी में। तो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हार्मोन दो अलग अलग रीजन से, एक एड्रिनल ग्लैंड से, एक जो है आपके न्यूरोहाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। दोनों का बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, आयंस के मेंटेनेंस में, आयंस के रीअब्जॉर्प्शन में, और दूसरा जो है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में। और नहीं तो एक विशेष प्रकार का रोग होगा जो फिर से एक डायबिटीज रोग होगा, उस डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और एक मैंने बताया ग्लूकोज से होने वाला जो कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के माध्यम से जब जो है इंसुलिन जिसको स्टोर किया जाता है, इंसुलिन के माध्यम से जो कि ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर किया जाता है। तो आपने देखा, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये दो हार्मोन्स के प्रभाव में ही वर्क करेंगी। तो मतलब ब्लड के माध्यम से जो ये आता है या फिल्ट्रेट होके और ये यहाँ पहुँचता है, क्योंकि ये कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पे हर जगह पे कैपिलरी पहुँची हैं और यहाँ से ये इन्फ्लुएंस करेंगी और इन्फ्लुएंस करने से ये वाटर का और इन सोडियम क्लोराइड और इन सब चीज़ों का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से लगातार प्रभाव से इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बना रहेगा। और ये आगे चल के मैंने कहा कि लॉट ऑफ द millions of the kidney, millions of the nephrons which are present into the each kidney, so that to the each nephrons which are communicated at the point which called to the duct of Bellini, that is the numbers of the ducts which are associated together. These are the indicating that is the here duct of Bellini, collecting duct and that. तो मैंने कहा कि अब देखिए लगातार रीअब्जॉर्प्शन होता जा रहा है और इसी प्रकार से, और मैंने बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रेटिनिन है, क्रेटिनाइन है, उसके साथ साथ में वो क्षमता चला जा रहा है, फिल्ट्रेट होता चला जा रहा है, फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्ब और बचता हुआ चला जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन है, तो इस हिसाब से जो भी मटेरियल जो बॉडी में रिक्वायर्ड है, रहने चाहिए, वो रीअब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, और जो टॉक्सिक है जो वो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो उसी प्रकार से जो आगे बच जाता है अलोंग विद द वाटर एंड द यूरोक्रोम, क्रेटिनिन, क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो ये सारी चीज़ें जो भी और भी एक्सेस चीज़ें हैं वो सारे मिलके यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं और वो यूरिन उसी ड्रेन करती हैं, ड्रेन टू द, दिस इज द कलेक्टिंग duct of Bellini, and duct of Bellini which are leads into the cup like extension into the calyces, minor, then major, and after that to the pelvis, and the pelvis is joined to the ureter into the point of the hilus, and that to the leads into the urinary bladder, and the urinary bladder is open into the outside of the body is the male and the female through the urethra. So that this is the path of the draining mechanism up to the urine and to the other fluids of the which are going in, which are recommended of the body. So this is the nephron. तो जितने भी ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, एंजाइम, हार्मोन, जितने भी आप जानते हैं ब्लड जो है ऐसा मीडियम है वो जो कि पूरे बॉडी में जो भी सबस्टांसेस होते हैं, जो एसेंशियल मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, वो ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट करते हैं और जहाँ पे जब जिस समय फिजियोलॉजी के माध्यम से होना है, वो जाना है, वो बॉडी पार्ट्स में या फिर किसी भी तरीके से वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसका फिजियोलॉजी है
वो हमने देखा। मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजी में आपका फिल्ट्रेट जो भी होगा, फिल्ट्रेशन जब भी होगा वो डिफ्यूजन होगा, कैसे होगा, वो तीनों पे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोसिस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करके उसी तभी जो है वहाँ से ब्लड फ्लो होगा। और ये तो था ये। अब देखिए ये इफरेंट एट्रियोल इस तरीके से ऐसे यहाँ से ऐसे करती है, सर्कुलेट करते हुए इस पूरे नेफ्रॉन्स के पार्ट्स ऐसे आगे बढ़ती जाती है और आगे चल के एक दूसरे से जुड़ जाती है। जहाँ पे दोनों एट्रियोल इफरेंट एट्रियोल के माध्यम जुड़ती है, उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लूइड होती है और आगे चल के ये कैपिलरी, फिर वेन्यूल और वेन्स में जो रीनल वेन्स निकलती है आइलेस पॉइंट में, वहाँ से निकल के ये इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से फिर से ब्लड में पहुँच जाती है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन्स है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फंक्शनिंग होती है, अलग अलग रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन्स और उसका फंक्शन हमने देखा। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग और भी हैं जो कि हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, और कुछ इसके जैसा मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म और ट्यूबुलर सिक्रीशन मैकेनिज्म, ये तो मैंने आज एक जनरली फॉर्म में आपको बताया। तो इन तीनों प्रोसेसेस के माध्यम से और ये जो मेन फंक्शन होते हैं और कुछ अन्य जो अदर्स जो फंक्शन होते हैं किडनी के, वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, तो उस विस्तार में बताएंगे। तो हम समझते हैं कि आपने किडनी की यूनिट जो कि नेफ्रॉन्स कहा जाता है उसको पढ़ा, उसके पार्ट्स को पढ़ा और उसके अलग अलग पार्ट्स में देखा कि किस प्रकार से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, कितन जो भी हार्मोन्स का यूज होता है, और जो है अफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल का क्या रोल है, क्या चीज़ें आती हैं यहाँ से, कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होती हैं, कितने % में रीअब्जॉर्ब होती है, इन सारे प्रोसेसेस में एक सिनेरियो में आपने देखा, समझा और जाना। तो आई होप you will implement it to this kinds of the knowledge which are related to the kidney and particularly nephrons, so that today's topic is closed. Now next lecture which are related and the last topics of the excretion process, so that thank you.